Hare Hare Krishna. Welcome to the session of A Greater Life Bhagavad Gita on the Thursday. Hare Bol. Hare Krishna, Prabhuji. Am I being audible? Yes, Prabhuji, you are audible. Okay, so I'll be muting everybody else. Hare Krishna. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So in the last session we covered up to shloka number 6 of chapter number 2. So shloka 6 we did not do the purport, and shloka 6 just to recollect. Na chaitad vidma kataranno gariyo yadva jayema yadiva no jayeyu yaneva hatvana jijivishamas te avastita pramuke Dhartarashtraha. So the meaning was, we already done this. Nor do we know which is better. कौन सा बेहतर है हमें पता नहीं है. Conquering them or being conquered by them. हम जीते या वो जीते, यह बेहतर है हमें पता नहीं है. The sons of Dhritarashtra, whom if we killed, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को मार देंगे, तो we should not care to live. न जीजी विशामास, तो हमें जीने की कोई आशा ही नहीं है. And they are now standing before us on this battlefield. लेकिन फिर भी ये हमारे सामने इस युद्ध भूमि में हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं. So Arjuna was lamenting about the situation that he is facing. So in the 5th shloka, if you remember, Arjuna is telling, I'm ready to even beg. Arjuna 5वें श्लोक में ये बता चुके हैं कि मैं भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हूं, जो कभी एक क्षत्रिय नहीं करता है. No क्षत्रिय will be ready to live by begging. वो छीन के खा लेगा या हक मांग के खा लेगा, टैक्सेस कलेक्ट करेगा, बट कभी वो भिक्षा नहीं मांगेगा. लेकिन 5वें श्लोक में अर्जुन वो व्यक्त करते हैं, मतलब इतना उकसा गया है वो, so much he has got depressed that he is ready to even beg. That is his situation on the battlefield. And in the 6th shloka he is expressing dharma sankada. तो ये 6ठे श्लोक में वो अपने धर्म संकट को व्यक्त कर रहे हैं. धर्म संकट क्या है? युद्ध लड़ना है कि नहीं, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, कौन सा बेहतर है ये हमें पता नहीं है. तो अगर वो मर गए तो हमें जीने की आशा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं. They are still ready to fight against us. So purport, Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence. तो उनको लग रहा था कि ये युद्ध तो हम रोक सकते हैं अभी भी, तो ये जो हिंसा है, जो अननेसेसरी है, जो मतलब किसी को नहीं चाहिए, ये हम रोक सकते हैं. So fighting is the duty of क्षत्रियस, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म युद्ध में उसको भाग लेना चाहिए.
इफ ही डिड नॉट कॉन्कर द एनिमी, अगर वो धृतराष्ट्र के पुत्र के ऊपर जय नहीं पाते, बेगिंग वुड बी द ओनली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, तो उनको भिक्षा तो जरूर, मतलब वो व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूंगा। नॉर वॉज देयर एनी सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री, लेकिन अभी वो बोल रहे, पहले बोल रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ वॉर, बिफोर दैट दे ऑलवेज वर कॉन्फिडेंट दैट बिकॉज कृष्णा इज ऑन आवर साइड वी विल विन, कृष्णा हमारे साथ है तो हम तो जीतेंगे। वो हमेशा ये आत्मविश्वास उनके साथ था, लेकिन अभी इतना डाउट्स आ गया अर्जुन के अंदर, वो बोल रहा है पता नहीं हम जीतेंगे भी कि नहीं। Then if the sons of Dhritarashtra died in the battle, it would be very difficult to live in their absence. फिर वो व्यक्त कर रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र अगर वो इस युद्ध में मर गए, लेकिन हमें तो फिर उसके बाद हमें जीने की कोई आशा नहीं होगा। Why? That is the love he still has for his cousin brothers. तो अपने चचेरे भाइयों के बारे में उनको अभी भी प्रेम है, इतना injustice सहने के बाद भी, after going through all the injustice, still Arjuna is having some love towards the cousin brothers. So this also shows that he was a great devotee. तो ये दिखलाता है कि अर्जुना एक महान भक्त था। He was highly enlightened, वो ज्ञानी भी था। He had complete control over his mind and senses. तो अपने मन और अपने इंद्रियों के ऊपर उनको पूरा नियंत्रण था। लेकिन ये सब होने के बावजूद, और he had also shown signs of detachment, मतलब वो त्यागी था, वो मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं रखता था। तो and he was truly virtuous. All Pandavas were very virtuous, मतलब धार्मिक थे। So and finally the most important character they had was they had faith in the words of instruction of Krishna. तो सबको कृष्णा के जो भी उनको एडवाइस देते थे उसके ऊपर वो लागू करते थे, मतलब वो मान लेते थे। That was one of the greatest qualities that Pandavas had. So these are the qualities that Arjuna and Pandavas have displayed till now throughout. तो पांडव और अर्जुन, खास तौर पे अर्जुन, ये सब स्वभाव दिखा चुके हैं हमें उदाहरण के तौर पे। So he was quite fit for liberation. तो ये सब स्वभाव होने के कारण, चरित्र उनका ऐसे होने के कारण वो मोक्ष के लायक थे। Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. जब तक इंद्रियों का हम संयम नहीं रखेंगे तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो आध्यात्मिक लोक का मोक्ष है वो मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होगा। The topmost liberation we will not be able to get. So this is what he is expressing, dharma sankata, in shloka number 6. We will go ahead with shloka number 7. Karpanya dosho pahata svabhavaha pruchami tvam dharma sammoda chetaha yashreyasyan nishchitam bruhitan me shishyasteham shadimam tvam prapannam. So this is the shloka where Arjuna acknowledges that yes, he is having some problems in making decisions about dharma. तो इस श्लोक में अर्जुन मान रहे कि हाँ, धर्म के बारे में मुझे अभी थोड़ा लगता है थोड़ा अज्ञानता आ चुका है। अभी तक तो वो दावा कर रहा था, till now he was trying to prove that he was right, but now he is acknowledging that yes, I agree that there are some doubts in me. So the word to word meaning for this, the translation, now I am confused about my duty. हाँ, मेरे कर्तव्य के बारे में थोड़ा मुझे संदेह हो रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेतः, and I have lost all composure because of weakness.
थोड़ा मेरे अंदर दुर्बलता आ चुका है और मैं अपने संयम को खो चुका हूँ। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव के ऊपर कार्पण्य दोष आ चुका है। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू, तो ऐसे अवस्था में कृष्ण मैं आपसे पूछ रहा हूं, टू टेल मी क्लियरली व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, तो आप मुझे निश्चित रूप से बताइए मेरे लिए क्या अनुचित है, क्या उचित है। नाउ आई एम योर डिसाइपल, अभी मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपका शिष्य बन चुका हूं। एंड सोल सरेंडर टू यू, त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम मीन्स टू बी सरेंडर्ड, मैं आपके शरण में आ चुका हूं। ब्रूहि तन्मे में मुझे आप बताइए, कैसे बताइए, निश्चितम में, कॉन्फिडेंटली, एक चीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, तो मुझे आप उपदेश दीजिए, आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। सो very two important things here Arjuna is doing. He's acknowledging karpanya dosha upahata swabhava. Then he's telling dharma sammoda chetaha. He's acknowledging these two things and then he's doing two other actions. तो पहले तो वो मान ले रहे हैं कि हाँ दोष आ गया है, कार्पण्य दोष आ गया है, धर्म सम्मोढ़ हो गया हूं मैं, और अभी वो मांग रहे हैं मुझे निश्चित रूप से बताइए, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। शिष्यस्ते हम, मैं आपके शिष्य बन गया हूं, आप शादी माम, आप मुझे उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आ चुका हूं। सो मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। जब हम भौतिक दृष्टि में सब कुछ देखने लगेंगे तो हमें सब कुछ मतलब दोहरे दोहरे लगने लगेंगे। परप्लेक्स मतलब कंफ्यूजन, मुझे संदेह आ चुका है। सो एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर पर्पट, इस पर्पट में try to, I will give you this, I'll give this as an exercise for you after the session. How many times Prabhupada has used the word perplexity or related word? That is the homework for you. So material activities is a source of perplexity for everyone. तो जब हम भौतिक दृष्टि से कुछ भी देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें कंफ्यूजन आएगा, संदेह तो आएगा ही। It behooves one to approach a spiritual master, bona fide spiritual master. ऐसे समय में हमें एक अधिकृत गुरु के पास जाना चाहिए। And perplexities of life happen without our desire. और जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, तो ये आता है बिना हमारी इच्छा से। every step we may be facing this like a forest fire. प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक वन में लगा आग की तरह है। कोई वन में जाके आग नहीं लगाता। Nobody goes to a forest and sets it on fire by friction of bamboo trees and leaves, dry leaves, spark is produced and the whole forest will catch fire. तो दो पेड़ के शाखाओं में जब रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसमें थोड़ा चिंगारी आता है और वो चिंगारी पूरे वन को खा जाता है। Perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. हमें नहीं चाहिए धर्म सम्मोढ़ा, लेकिन वो हमारी जिंदगी में बिना पूछे आ जाता है। One must approach a spiritual master who is in discipline succession. तो ऐसे समय में हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो परंपरागत आ रहे हैं। So this is also a way of selecting a spiritual master. हमें कैसे पता है कि ये गुरु अधिकृत है, माननीय है, तो हमें देखना चाहिए कि उनका परंपरा क्या है। तो ये एक रूप है। दूसरा देखना चाहिए, another thing we have to see is what is he constantly speaking? What is this person constantly speaking? If he is constantly speaking about Krishna and glorifying Krishna, he is a bona fide spiritual master. यदि कोई गुरु अपने आप को गुरु बताता है
तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि ये सही मान्य से गुरु है? वो हमेशा कृष्णा के बारे में बात करेगा, उनका ग्लोरिफिकेशन करेगा, मतलब हमेशा उनके बारे में और उनके लीलाओं के बारे में बताएगा, और आपको बताएगा उनके शरण में जाइए. So you will say surrender to Krishna. So he is a bona fide spiritual master, very easy to identify. तो who is the man in material perplexities? कौन है वो जो आदमी जो भौतिक ये कलमश में आ जाता है, परप्लेक्सिटीज में आ जाता है? तो प्रभा जी बोलते हैं, इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. अगर कोई है जिसको जीवन के समस्या का समाधान करना नहीं आता, पहले तो जीवन के समस्या के बारे में ही पता नहीं है, दूसरी बात जीवन के समस्याओं के समाधान उसको नहीं पता है, तब उसको हम बोलते वो परप्लेक्स्ड है. ही इज इन अ परप्लेक्स्ड कंडीशन. So there is a sloka in Garga Upanishad which says, Yova etad aksharam gargi aditva smal lokat priti sakrupanaha. The important word here is krupanaha. He is a miserly man. वो एक कृपण है. कृपणा इज ऑपोजिट ऑफ ब्राह्मणा. ब्राह्मणा जो जीवन के मूल्य के बारे में, जीवन के मौल्यों के बारे में ज्ञान रखता है. कृपणा इसका ऑपोजिट है, जो जीवन के मूल्य के बारे में पता नहीं है. He is a miserly man who does not solve the problems of life. जो जिंदगी के जीवन के समस्याओं के बारे में नहीं जानता है और उसको उसमें ना उलझने की कोशिश करता है, वो कृपणा है. And thus quits the world like cats and dogs. वो जी लेता है कुत्ते और बिल्ली की तरह और फिर मर जाता है. Without understanding the signs of self-realization, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान को जाने बिना जब वो शरीर को छोड़ देता है, उसके और एक कुत्ता बिल्ली के बीच में क्या फर्क रह गया? वो भी जीता है, मरता है, और इसने भी जी लिया जिंदगी के सारे, जो सुख था उसने भोग लिया, जो कष्ट था उसने देख लिया, लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढा, तो उसमें क्या फर्क पड़ा? वो भी एक प्राणी की तरह जी लिया. So this human form of life is a most valuable asset. तो ये जो मानव शरीर हमें जो मिला है अति अमूल्य है. तो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि getting a human form of life is a very rare thing to happen. So we must not waste it. So one who does not utilize this opportunity properly is a miser. जो इस मानव शरीर का पूरी तरह उपयोग आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए उपयोग नहीं करेगा, वो कृपण है. कृपणास और माइजरली पर्सन्स वेस्ट देयर टाइम. वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही गवा देते हैं, समय को ऐसे ही गवा देते हैं. इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, भौतिक दृष्टि में पूरी जिंदगी जी लेते हैं. एंड प्रभुपाद जी कॉल्स दिस अ स्किन डिजीज, चर्म रोग, because it's identifying with the body. Such family attachment can be found even in lower animals. तो ऐसे प्यार और बंधन तो हम प्राणियों में भी देखते हैं, पालतू कुत्ते में भी देखते हैं, जंगली प्राणी में भी हम देखते हैं. माँ का प्यार देते हैं, बाप का प्यार देते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं. And Arjuna could understand his duty was to fight. Still on account of miserly weakness, he could not discharge his duty. देखिए, एक भक्त, अर्जुन की तरह एक भक्त जो मित्र है भगवान कृष्ण का, वो भी जब दुविधा में आ जाता है, परप्लेक्सिटी में आ जाता है, तो उसको भी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो ही जाता है. सो लॉर्ड कृष्णा इज अ सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर. वो आदि गुरु है कृष्णा, वो परम गुरु है, विश्व गुरु है, जगत गुरु है. So now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. तो उनके सामने जगत गुरु, विश्व गुरु, सबसे परम गुरु है, और उन्हीं को वो अभी गुरु मान चुका है. So Krishna is therefore the original spiritual master, आदि गुरु. कृष्णा आदि गुरु है.
And how Arjuna understand Bhagavad Gita is stated in Gita itself. तो अर्जुन ने भगवत गीता को कैसे समझा, वो गीता में ही उल्लेख दिया गया है। 10वें अध्याय में जब हम जाएंगे हमें पता चलेगा। Very simple words, he understood as Krishna told him. जैसे कृष्ण ने बताया उसी डायरेक्शन में उसने सोचा, उसने अपना कोई मतलब उसमें नहीं निकाला। So he did not put his connotations onto it. And yet, foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person. तो बहुत सारे ऐसे so called ज्ञानी हैं जो बोलते हैं कृष्णा का शरणागति होने की जरूरत नहीं है, बट टू द अनबॉर्न विद इन कृष्णा, कृष्ण के अंदर भी परमात्मा है, उस परमात्मा को आपको शरणागत होना चाहिए। In other words, they are telling Krishna is not God. Within Krishna, he is a superhuman, and there is God inside him, Paramatma. We must surrender to that God. So this is their foolishness. They do not know that within and without Krishna there is no difference. तो कृष्णा के अंतरंग और बहिरंग में कोई व्यत्यास है ही नहीं, और वो स्वयं भगवान है, वही परमात्मा बन के सबके हृदय में बैठे हैं। So this is wrong logic that many so-called scholars, विद्वान uses. So one who has no sense of this understanding कि कृष्ण भगवान है, उनके अंतरंग और बहिरंग में कोई डिफरेंस नहीं है, is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. फिर भी भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है। There are many scholars of Bhagavad Gita. विद्वान है भगवद गीता का हर श्लोक, every shloka they will be able to chant and tell you. Every word they will be able to tell you. But if you tell who is God, they'll say भगवान निराकार है, भगवान ये देवता है, वो देवता है, कृष्ण के बारे में नहीं बोलते। मतलब उनका पूरा भगवद गीता का ज्ञान बेकार चला गया। The entire knowledge of Bhagavad Gita is down the drain because you have not caught the crux point itself. That Bhagavad Gita मतलब भगवान ही तो बोल रहा है, Krishna is speaking. So he is Bhagavan. Why are you calling it Bhagavad Gita? अगर वो भगवान नहीं था तो उसको भगवद गीता क्यों बोल रहे हो आप? कुछ और बताइए ना। Of course, here somebody asked me a question. Prabhuji, are there any other names for Bhagavad Gita? Yes, Bhagavad Gita is also known by many other names. This particular Bhagavad Gita spoken by Krishna, पहले तो सिर्फ गीता बोल सकते हैं, by default वो भगवद गीता है। फिर ईश्वर गीता, अनंत गीता, हरि गीता, व्यास गीता, all this mean भगवद गीता spoken by Krishna. ये सब भगवद गीता के दूसरे दूसरे नाम हैं। So here again in this श्लोका, इस श्लोक में और छठे श्लोक में धर्म संकट व्यक्त कर रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं धर्म संकट को, और वो ज्ञान मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं और भगवान के शरण में गए हैं। So he is already openly telling, I surrender. And it's a turning point in this entire sequence. ये एक मोड़ है जो उचित मोड़ है, मतलब it takes in the right direction. Because Arjuna is surrendering as a disciple, क्योंकि अर्जुना शिष्य बन के कृष्ण के शरण में गए हैं। So many people call it as the classic shloka of Bhagavad Gita, turning point in Bhagavad Gita. अब तक बड़बड़ करता रहा अर्जुना, अपने लॉजिक बताता रहा, he went on telling his logic, but now he is telling, you tell me what is better than anything else. One point you tell me what should I do. एक चीज बताइए, मेरे धर्म, मुझे धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं हो गया हूं अभी निश्चितम ब्रूहितन में. One thing you tell me what I should do. So this is called as faith in God. So learning from this is, what is faith in God? Faith in God is, may everything happen as per your desire, O Lord. But सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए, ये श्रद्धा है भगवान के ऊपर. लेकिन हमारा श्रद्धा कैसा है?
हम तो व्यवहार करते हैं, वी डू बिजनेस विद लॉर्ड, वी से we say, oh Lord, tomorrow there is a function in our house, please make sure that there is no rain and no disturbance for it. कल हमारे घर के अंदर एक हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो आप प्लीज भगवान ये देख लीजिए कि बारिश ना आए. सो वी आर मेकिंग कृष्णा और ऑर्डर सप्लायर. कृष्णा को हम एक मतलब हमारी इच्छा पूर्ण करने वाला एक जिन की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सही श्रद्धा क्या है? ये बोलना, भगवान, ओ लॉर्ड, टुमारो देयर इज अ फंक्शन इन आवर हाउस, व्हाटएवर इज योर डिजायर मे इट हैपन. तो आपकी जो इच्छा है वो हो जाए. इट्स अ वेरी लॉन्ग वे बिफोर वी कैन गो अप टू दैट लेवल. वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत दूर है. बस हम भगवत गीता पढ़े, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे, एक दिन हम उस मकाम पे जरूर पहुंचेंगे. सो व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा, व्हाट हैपेंस? जब हम कृष्णा के शरण में जाएंगे तो कृष्णा विल नॉट जस्ट चेंज अवर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, ही विल मेक द नेसेसरी चेंजेस इनसाइड अस. तो कृष्ण के शरण में जब हम जाते हैं कोई भी समस्या लेके, तो कृष्ण सिर्फ हमारे बाह्य सर्कमस्टेंसेस को, संदर्भ को ही परिवर्तन नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर भी परिवर्तन कर देते हैं. तो ही गिव्स अस दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू बी एबल टू विथस्टैंड एनीथिंग. वो हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं कुछ भी सहने की. सो compassion when misplaced is a dosha. तो अर्जुन is acknowledging, हाँ दया दिखा रहा हूं और मुझे अभी पता चल गया है कि आपके साइलेंस से मुझे पता चल गया है, आपके मौन से मुझे पता चल गया है कि हाँ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है. भौतिक दृष्टि में मैं देख रहा हूं, आप आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान मुझे दीजिए. सो compassion also, if it's on material platform, it is not correct. Should be always on spiritual platform. So two things we are seeing here. One is Swabhava, inner nature of Arjuna. Inner nature of Arjuna is what? Is a devotee, always compassionate. So that is going to come out. इसमें अर्जुन का स्वभाव क्या है? वो भक्त है, तो दया उनके अंदर हमेशा है, वो तो बाहर आएगा ही. लेकिन अभी वो कैसे बाहर आ गया? हाउ इट हैज कम, इन व्हाट फॉर्म? प्रभाव हो गया. तो स्वभाव और प्रभाव. प्रभाव मतलब, प्रभाव मीन्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी. तो एक बाहरी व्यक्ति या संदर्भ या स्थल की वजह से हमें जो चेंजेस हमें महसूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रभाव. एक स्वभाव है और स्वभाव के ऊपर प्रभाव बाहरी कारण से आता है. लाइक इन द फर्स्ट श्लोक, धृतराष्ट्र स्टेलिंग, धृतराष्ट्र पहले श्लोक में व्यक्त कर रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसको वो चिंता हो रहा था, मेरे बेटे के स्वभाव है राज्य को वापस नहीं देना, लेकिन कुरुक्षेत्र के स्वभाव से, प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से अगर वो धर्मी बन गए और वापस दे देंगे तो मेरा राज्य तो चला गया. तो ये ऐसा सोच रहा था धृतराष्ट्र. सो स्वभाव प्रभाव. सो हु इज द डिवोटी एंड हु इज अ डिसाइपल? वन हु इज वर्दी ऑफ डिसिप्लिनिंग, जिसको हम शिक्षा या शासन कर सकते हैं, जिसके ऊपर गुरु, जिसके ऊपर शासन या शिक्षा दे सकते हैं, उसको शिष्य बोलते हैं. इफ ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो देन ही इज नॉट ए डिसाइपल. अगर वो गुरु का आदेश को नहीं मानता है, वो नाम के वास्ते शिष्य है, वो शिष्य है ही नहीं. सो द ह्यूमन बॉडी, वी रेड इन द purport, इज लाइक अ फाइन व्हीकल. तो वाई वी आर टेलिंग ह्यूमन बॉडी, अगर हमने वेस्ट कर दिया तो हम कृपणा कहलाएंगे. कृपणा मतलब वी हैव नॉट यूज्ड एंड समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल प्रॉपरली. एक अमूल्य चीज को हमने सही तरीके से यूज नहीं किया तो हमको कृपणा बोला जाएगा. तो उदाहरण के तौर पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, देयरफॉर आई एम डेवलपिंग ऑलमोस्ट द होल क्लास ऑन टू इट. कैसे? इट्स अ टर्निंग पॉइंट. तो human body is like example Mercedes car.
तो एक मर्सिडीज कार की तरह अगर ह्यूमन बॉडी है और हम उसको खरीद के आके खेती करने लगे, उससे खेती करने के ट्रैक्टर की तरह यूज कर लिया. If we bring Mercedes car and start using it in the field like a tractor to till the land, then is it a correct use? It could have been used in a better way, but we are using it as a tractor. तो एक ट्रैक्टर की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो ये सही यूज नहीं है मर्सिडीज कार का. तो what will happen after some time? The horn, which is supposed to make sound, will not make sound, and every other part will make sound. तो जो भोंपू है सिर्फ वही आवाज नहीं करेगा, बाकी सब पार्ट्स मर्सिडीज कार का आवाज करने लगा, क्योंकि आपने उसका गलत उपयोग कर दिया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कृपणा, miserly man, not using human life to full extent. So we will move on to shloka number 8. Nahi prapashyami mama punadya यच्चोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नरुद्धम राज्यम सुराणम अपि चाधिपत्यम. Very important shloka. Here Arjuna is going to tell us something very important. What we try to do in our material life and why it is wrong, he is going to tell. I can find no means to drive away this grief. मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा इस शोक को दूर भगाने का. Which is drying up my senses. इस शोक की वजह से मेरे सारे इंद्रिय सूख गए हैं. I will not be able to destroy it. तो मैं इसको मात नहीं दे सकता, इस शोक को मैं मिटा नहीं सकता. Even if I win an unrivaled kingdom on earth. अवाप्य भूमौ असपत्नरुद्धम. तो यदि मेरे पास कोई भी अपोजिशन नहीं होगा, उस मात्र में मुझे भूमि मिल जाएगा, तो भी ये शोक नहीं जाएगा. With sovereignty like that of demigods in heaven, और सुरगण देवता लोक में सुरगण के पास जितना ऐश्वर्य है, जितना उनके पास भूमि है, राज्य है, अधिकार है, उतना भी मेरे पास आएगा, तो भी इस शोक का निवारण नहीं होगा. So what is Arjuna trying to tell us here? Any amount of material wealth, materialistic view of life, material solutions, we try to find out and try to implement in our life, the real lamentation of our soul will not go away. हम जितने भी पैसा कमा लें, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो भौतिक दृष्टि में हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको आध्यात्मिक स्तर में ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा. So this is a very important shloka. That's a very good lesson that Arjuna is teaching us. So he's saying it is impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master. तो उसने मान लिया अपने आप मटेरियल लेवल में रह के मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और आध्यात्मिक लेवल पे मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे गुरु चाहिए. मेरे सामने विश्व गुरु है, तो मैंने उनका शरण ले लिया. So he's not surrendering to Krishna as God. He's surrendering to Krishna as Guru, as a disciple, and he's wanting him to be a Guru. This is a way of achieving God, not directly approaching God. Although in this case, he's appointing God itself as Guru. So if you want God in your life, अगर आप भगवान को चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही वो होगा. It is only possible through the medium of a guru. So when we found out any academic knowledge, scholarship, high position are all useless in solving problems of life. So Arjuna, we should understand, Arjuna, what kind of a person he was? He had all qualities in him. Is it not? What is that? Aristocratic birth. राज खानदान में पैदा हुआ है. High academic knowledge. राज खानदान में है तो भौतिक एजुकेशन उनका बढ़िया हुआ होगा. ग्रेट स्किल्स, बहुत ही अच्छा धनुर्धारी था. हाई पोजीशन इन रिगार्ड, तो सब लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे. ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही सुंदर था वो. और स्ट्रॉन्ग बॉडी,
मतलब उसका जो काय था वज्र की तरह था, and all this could not help him solve the problems he was facing. तो धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया है, तो कोई भी material qualification, any material qualification is not able to help him. So all our degrees, I may be a doctor, I may be an engineer, I may be prime minister, I may be chief minister, I may be president of the United States. These are all material qualifications. I may have 100 wives, I may have all the riches in the world. मेरे पास हर तरह का संपत्ति हो सकता है, लेकिन हर तरह का पोजीशन हो सकता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, गुरु नहीं है हमारी जिंदगी में, कभी भी हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर नहीं पाएंगे. We will never be able to solve our problems. So who is a spiritual master? Again, here it is said, a spiritual master is one who is 100% Krishna conscious. जो 100% कृष्ण भावनामृत के फीलिंग्स में रहता है, कृष्ण प्रज्ञा में रहता है, 100%, 100%, वही आध्यात्मिक गुरु कहने के लायक है. एंड ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ. तो वो हमारे आध्यात्मिक स्तर पे हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू अर्न मनी. यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड. हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गेट द वाइफ अंडर कंट्रोल, पत्नी को कंट्रोल में कैसे लेके आना है, कैसे व्यवहार करना है भौतिक जगत में, कैसे पैसे कमाना है, ये सब नॉलेज नहीं देंगे वो. उसके लिए आप मेटल एजुकेशन ले सकते हैं. He gives you knowledge that is higher than this, that is better than this. So Guru हमें, that's why it's called heavy. He is heavy with knowledge. तो गुरु हमें आध्यात्मिक विद्याभ्यास कराते हैं, जिससे हम सारे भौतिक कलमश को भी ओवरकम कर सकते हैं. All material problems have only spiritual solutions. तो हर तरह के भौतिक समस्या का समाधान भौतिक दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें मिल सकता है. बट हम क्या करते हैं, भौतिक तर में ही सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं. वी कीप सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस विद इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फेल. So one who is the master in science of Krishna consciousness, regardless of his position, is spiritual, real spiritual master. जो कृष्ण प्रज्ञा के बारे में 100% विज्ञान जानता है, वही सही गुरु है. So it is mentioned किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन नया, ये कृष्ण तत्व वेत्त से गुरु है. जो कृष्ण तत्व को जानता है, one who knows philosophy of Krishna, he is guru. He is fit to become a guru. वही गुरु बन सकता है. So without being a spiritual master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. तो कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्व विज्ञान अगर वो नहीं जानता है, तो वो गुरु कभी ही नहीं हो सकता. षट कर्मो निपुणो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर् न स्याद् वैष्णवो स्वपाचो गुरुः. That means he may be a षट कर्म nipuna, he may know all the 6 types of rituals. Mantra tantra visharada, he may be expert in mantra and tantra. But if he is a Vaishnava, if he is not a devotee of Krishna, gurur न स्याद्, वो कभी गुरु नहीं बन सकता. लेकिन अगर वो वैष्णव है और वो स्वपच भी है, वो गुरु बन सकता है. नीचे खानदान वाले, मतलब लो बर्थ उसका हुआ है, लेकिन वो वैष्णव है, कृष्ण को मानता है, कृष्ण को पूजता है, वो गुरु बन सकता है. So this is what we are learning in this chapter up to this point. So thank you very much for joining me this session. We will meet again either tomorrow or day after. I will keep you. Hare Krishna, 108. That's the way.